السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آپ کا میزبان سید علی حیدر. ناظرین، آج کا میاں نواز شریف صاحب کا جو پاور شو ہے، جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے، اس سے بذات خود کئی سوالات کو جنم دیا ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس ریلی سے پہلے جو نیریٹو بلڈ کر رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا. کیا میاں صاحب اپنے اس ریلی کے مقصد کو حاصل کر پائیں گے، اور ان کے نزدیک ان کا کیا مقصد ہے، جبکہ اپوزیشن کے نزدیک میاں صاحب کی اس ریلی کا کیا مقصد. تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ویژول دیکھا، طارق فضل چودھری صاحب ایک پمفلٹ کو لہرا رہے تھے. وہ پمفلٹ بذات خود واضح کرتا ہے کہ اس ریلی کا مقصد کیا ہے. گو کہ حکومتی ممبران، ہمارے حکومتی دوست اس سے ایگری نہیں کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی پینل موجود ہے. ہمارے معزز ممبران پارلیمنٹ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ایک ایسا نام جس نے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک مختلف پوزیشن لی ہے. جناب شاہ محمود قریشی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، خود بھی کئی ایسے ادوار دیکھے، مشکل دور بھی دیکھے، مشکل وقت سے خود بھی گزری، محترمہ سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بلکہ پہلا سوال سر بنتا ہی آپ سے ہے، کیونکہ ریلی آپ کی، اٹس یور شو. شو آپ کے نزدیک ہٹ ہے یا فلاپ ہے؟ مجھے آنسر کی توقع ہے جو آپ دیں گے، لیکن اس آنسر پہ بھی میرے بڑے کوسچنز بیس کرتے ہیں آگے چل کے. شو ہٹ ہے یا فلاپ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، ابھی ہماری آج صبح کوئی 11:30-12 بجے چلے ہیں پنجاب ہاؤس سے. ابھی راولپنڈی فیض آباد سے کچھ آگے شمس آباد کے قریب پہنچی ہے. یہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ پورا میڈیا سارا دن بھی اور اگلے 1 یا 2 دن اس کو ضرور جو ہے خود دیکھے گا. میں ابھی کچھ بات میں جو بات بھی کہوں گا وہ قریشی صاحب کہیں گے کہ میں نے بہت زیادہ کہی ہے، لیکن میں آپ کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور یہ کال پرسوں تک ذرا انتظار ضرور کیجئے گا. ابھی تو یہ ریلیز جی ٹی روڈ پہ پہنچے. ایکسپیکٹیشن بتا دیں، امید بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں جس طرح کا آج کراؤڈ آیا، جو آپ لوگ بھی کور کرتے رہے، یا سینئر دونوں پارلیمنٹیرین یہ بھی دیکھتے رہے، کہ میں نے اسلام آباد کا ایسا نہیں دیکھا. جو پنڈی میں ابھی داخل ہوا ہے وہ بھی ابھی ہمارے نزدیک بہت ہی بڑا امپریسو ہے. اس طرح لوگ نکل کے ہیں، کسی کو کسی نے لایا نہیں ہے، کسی کو کسی نے گاڑی نہیں دی، کسی کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آئیں. لوگ خود اپنے محبوب قائد میاں نواز شریف کی ایک جھلک دیکھ کر، اس گرمی میں آپ آج کے دن کا ٹمپریچر دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ گرمی تھی. یہ بس تھی ایک صبح سویرا سے. میں صبح یہاں جب پنجاب ہاؤس جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ، کوئی ڈی اے خان سے پہنچا ہوا تھا، کوئی جہاں سے جس کو لفظ ملتا ہے جو وہ میاں صاحب کی جھلک دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹول ٹیکس بھی نہیں پے کیا تھا، میں نے سنا. اچھا، کس نے جی؟ جو اٹک سے قافلہ اگر کوئی ایک قافلہ آیا تو گاڑیاں اگر کوئی آگے تو ہم نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ گاڑیاں دی گئی ہیں نہ بلایا گیا. میں ڈیفر کروں گا، لیکن میں باری میں بھی کاؤنٹر نہیں کروں گا. میں صرف آپ کا موقف لینا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب، سر آپ کی تو بڑی ایک ہسٹری ہے، اور آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہے روڈ ہٹ کرنے کا، ریلی نکالنے کا اور جلسے کرنے کا، اور کچھ آپ نوسٹالجک بھی ہو رہے ہوں گے. کنٹینر، اگست کا مہینہ، یہ سب کچھ آپ کچھ نیا نہیں لگ رہا ہوگا. ویسے آپ امپریس ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. یہ کنٹینر کی سیاست کرنے والے اسمبلیوں میں آؤ، ایوان میں آؤ، جمہوریت بچاؤ. آج میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تیری شان دیکھ رہا ہوں، جو کنٹینر پر تنقید کرتے تھے آج کنٹینر پر سوار ہو گئے. آج اسمبلی لگی تھی علی میاں، آج اسمبلی لگی تھی، کوئی نون لیگ کا ایم این اے موجود نہیں تھا. سپیکر بیچارہ آذانیں دے رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. نہ وزیر، نہ امیر، نہ سفیر، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا ایوان، کیونکہ سب تھے کنٹینر کے پیچھے. ایک دوسری بات دیکھیں، ہم نے ایک ان کو سکھا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری طرح سکارف پہننے شروع کر دی، ہماری طرح ٹوپیاں سجانی شروع کر دی. اب کہتے تھے رقص کرتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اسلامی قدروں کو پامال کرتے ہیں. آج وہی ترانے بج رہے تھے. چلو الحمدللہ یہ کچھ سیکھے تو ہیں پی ٹی آئی سے. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہٹ ہوئی کہ نہیں. بھائی وہ تو خود مان گئے کہ ابھی تو مووی ریلیز ہی نہیں ہوئی.
हिट होती है या नहीं होती वो तो बाद में पता चलेगा। क्लाइमेक्स से अभी पहुंचेगी तो तो मूवी पता रिलीज ही चलेगा। नहीं हुई क्योंकि मूवी अटक गई है पंजाब हाउस रावलपिंडी में। कई दफा पुरानी होती थी ना रीलें, वो फंस जाया करती थी, फिर स्पूल निकालते थे, दुरुस्त करते थे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो रील फंस गई है, रावलपिंडी जाके फंस गई है। क़यामत की अलामत अच्छा, है कि अब- पीटीआई को नेशनल असेंबली याद आ रही है और उनको कंटेनर याद आ रहा है। आपने बड़ा कमाल हो गई है। टेबल्स आर कमाल ये है। टर्न शेरी साहब, टेबल्स आर टर्न वाकई। I'm really enjoying अब दूसरी this. सुनो कहते थे कि अगर सड़कों पे हम सड़कें बनाते रहेंगे, ये सड़कें नापते रहेंगे। शुक्र है जी। शुक्र है। मैं सुना दूं वैसे वो हमारे पास सुनाएं कौम को सुनाएं। सड़कें अब कौन नाप रहा है? अच्छा, एक कंटेनर के बाद एक और बताऊं। जी। अभी शेरी रहमान साहबा कह रही थी कि टोल पे नहीं किया गया। चले माफ जाने दें, 28,000 जाने दें। पुलिस की गाड़ियां, जी, पुलिस की गाड़ियां नफरी, छोड़िए, sorry, पंजाब के खजाने को जिस तरह बोरियां खुल गई उसको भी छोड़िए। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, केपीके से काफिला आया, अमीर मकाम लेकर आए, हाँ बड़ा काफिला। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, कोई टेयर गैस नहीं थी, कोई लाठी चार्ज नहीं था। जब हमारा काफिला आया था तो पंजाब पुलिस ने तूफान बदतमीजी, आप तो लॉकडाउन करने आ रहे थे ना, आप शायद। सब वो शहर को लॉकडाउन बंद करने कर आए थे। लॉकडाउन। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। हमारा तो वजीर जुलूस है ही आज़म नहीं। अपना, वजीर आला अपना, हुकूमत अपनी। अरे अच्छा, मैं आपकी इजाजत से पढ़ाई शेरी साहब, अच्छा, ये आपके तो पास फिर- आने से पढ़ाई- पहले- अब ये बड़ा एक जुमला, ethic नहीं, अब एक आप अपनी जुमला। बात कर सकते हैं। मैं Sorry. शेरी साहब को जो बड़ी देर से इंतजार किया उन्होंने, शेरी साहब इस पे आप अपना कमेंट दे दें। अब मैं- मैंने वो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जुमला चलिए। एक जुमला में ये कह आप दूं defensive कि से- ना हमने रैली का कहा था, ना हमने रैली निकाली है। हम तो जा रहे हैं। मियां साहब ने कहा कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ लाहौर। ये उस मोहब्बत के से लोग निकल रहे हैं, जल्दी मोहब्बत उस मोहब्बत से लोग निकले। ये तो रैलियां आ रहे थे लॉकडाउन करने के लिए खास मिशन है कि नजर न लग जाए। शेरी साहब, माशाल्लाह। अब इस पे हम एहतजाज नहीं करने जा रहे थे। केस हो जाएगा आपका। मैं एहतजाज नहीं कर नहीं रहा नहीं, अब मैं केस कर डालूंगी विमेंस एम्पावरमेंट का आप दोनों पर। ज्यादा बातें ना करें, आजकल दौर निकला। अच्छा नहीं, मैं संजीदा बात आजकल वैसे सामने के आप खामोशी से उसको हवा देती है। मैं क्या हवा दे रही हूँ? मैंने क्या हवा दी? गुफ्ता गुमानी, फरियाल टालपुर, हल्के हल्के हवा देती है। अस्तगफुरुल्लाह। मैडम, please. नहीं, अब अच्छा, वो अब issue- serious note, वो अब issue serious छोड़ note लिया, इस पे- छेड़ लिया तो you will be on the defensive on that. शेरी साहब, इंप्रेस हुई आप इनके पावर शो से? Well, I mean, अभी तो पावर नजर नहीं आया ठीक मुझे। कहा जा रहा है कि आगे जाके कुछ हिम्मत और पकड़ेगी, ये विंड पकड़ेगी, ये जो किश्ती सेल उठी। मगर एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, अभी तक ऐसा लगता है कि कोई सबक नहीं सीखा, नो लेसन्स लर्न्ड। इतने आप अदवार से गुजर रहे हैं, तीसरी दफा आप हटाए गए हैं और बड़ा सियासी शहादत का आज सेनेट में मुजाहरा हो रहा था कि हम सियासी शहीद हो गए। मतलब वही विक्टिम का लिबादा, फिर पीपल्स पार्टी से मुआवजे और हमारे नारे भी अप्रोप्रिएट किए जा रहे हैं, बेनज़ीर बेकसूर या ला। तो सब ने कहा खुदा के लिए, पहले तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ऐसे मुंह पे आया कैसे आपके? मुआवजा कहीं से नहीं बनता, मगर बीबी शहीद से भी नहीं बनता, जिसने आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पास की तरफ लेके गई थी। गलतियां माफ कर जी माफ, बट मैं तो अभी वहाँ हाउस में सुन के आई हूँ ना, मैं इसकी अर्ज कर रही हूँ। अच्छा, अब ये कुल्हाड़ी अब जो लगा रहे हैं इतनी देर से अपने पैर पर, इन्होंने अब मैंने सुना है कि अदम जो टॉलरेंस की कैफियत इनकी मुस्तकिल रही है, वो एक नई हाइट पे पहुंच गई है। उन्होंने रिपोर्टर्स को, मीडिया को सुना बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। 92 बोल ARY। देखिए, जब तंजीमें और हुक्मरान जमात खुद अपनी गवर्नमेंट में रैलियां निकालती है, एक दिन थोड़े दिन कंफ्यूजन में एक दोस्त कहते हैं कि हमने इन्हीं के दोस्त एलाइज कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं, हम अलविदाई अपना सफर तय करें। हम कहते हैं PTS भी कहते हैं टेंशन ना लें, लोगों को पुरअमन निकालने का है हक, डोंट गेट अपसेट। बात यह है कि नेचुरली अब इनकी कंटेनर थी, इनकी नॉन कंटेनर थी, अब रोल्स रिवर्स हो गए। मैंने कहा ना, क्या क़यामत की अलामत, ये नेशनल असेंबली को सडनली याद कर रहे हैं, वो कंटेनर पर पहुंच गए। नहीं, आपने कुछ बोला, कंटेनर भी सुना तैयार हो रहा है। हमारा तो हमेशा तैयार होता है। पुरानी आपकी इजाजत से वो नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा माजी के, ज्यादा नहीं, करीबी मैं लेके जाऊंगा। मियां साहब क्या कहते थे कंटेनर के हवाले से, सड़कों के हवाले से, जरा सुन लीजिए, फिर ये चीजें अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। हम सड़कें बनाते जाएंगे,
ये सड़कें नापते जाए। ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते, तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। सेनेटर साहब, सर ये देख लें अब आप, ये सब कुछ वही है जिस पर आप तंज ताना कशी किया करते थे। अब फर्क क्या रह गया? ये वाहिद मैं सोशल मीडिया हो गया यार, नहीं फर्क नवाज चले के हकान आ गए, फर्क दिखाई नहीं देता। वो फर्क तो दिखाई दिया कि लोड शेडिंग बढ़ गई ना, लगता है वो शायद मियां साहब हाथ से टरबाइन चला रहे थे, गालिबन क्या हुआ। सेनेटर साहब, वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है सड़क पे आके, इदारे आपके अदलिया नहीं वो पूछिए, आपका सवाल ये होना चाहिए मुक्का किसको दिखा रहे हैं, प्लीज चिलमन से आज साजिशों पे नकाब करो प्लीज, मैं नकाब करो। ऐसा बात ये है कि इन्होंने कहा कि हमने इनको कंटेनर पे चलना सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह नाम कंटेनर पे गए, ना हमने 120 दिन का ये अंदर ना दिया है, ना कंटेनर की कोई बात है, ना किसी के खिलाफ हम गए, ना कोई हम यस I have to come up with a point. सर ये पम्फलेट है जो ये आप भी देख लें सर, मैंने देखा हुआ पम्फलेट है, ये हेलीकॉप्टर से भी बांटा जा रहा है, ये बांटा भी जा रहा है। आप मुझे बताइए किसके लिए ये है? आपने 2 सवाल किए, मुझे मुख्तसर सा जवाब दे ताकि अब मैं आपको याद दिला दूंगी कि स्कार्फ और टोपी किस पार्टी में पहनते थे आप, एक तो ये जो आप कह रहे हैं पीटीआई ने डिस्कवर किया कि हम आप पॉइंट करवा रही है सेनेटर साहब को जरा इस पे जरा पॉइंट किया। एक तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ये जो जा रहे हैं, ये जो है, ये मियां साहब ने फैसला किया है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारा महबूब कायद यहाँ से गुजरे, वो लोग खुद मियां साहब को देखने और मिलने आ रहे हैं। ना ये कोई एहतजाजी रैली है, ना ये किसी के खिलाफ रैली है। ये पम्फलेट का बता दें, ये पम्फलेट जो है ये जिसमें, और ये आज की बात नहीं, ये रैली शुरू होने से पहले एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। सेनेट में स्पीच करके आया हूँ सर, जो बात हमने कहनी है वो हम जरूर करते हैं। हमने कहा कि ये सारी जमात तरह में मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब का ये पनामा से लेके, ये फ्लैटों से लेके, ये अरबों और खरबों की करप्शन की बातें करते थे, और ये कहते थे कि हम सबूत देंगे अदालतों में। ठीक है, वो आएगी जरूर। जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, और आप जानते हैं कि वो किस बात पर हुई है, कि एक कंपनी थी उनके बेटे की, जिससे उन्होंने तनख्वाह लेनी थी, वो तनख्वाह मैं उस से क्या था, अदालत ने किया, अदालत में हम तो कोर्ट में नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी करप्शन के केस की वजह से नहीं हुआ, ना ही कोई करप्शन का केस साबित हुआ है। एक वो तनख्वाह जो कभी ली नहीं गई, बेटे की थी, वो लेनी थी, 6.5 लाख एफजी ने हिल मेटल को ट्रांसफर किए थे। नहीं, बिल्कुल क्या, जबकि एफजी का कोई एसेट नहीं था, कोई ट्रांसफर। अब ये मामला था, लेकिन मकसद सर बता दो, मकसद मैं ब्रेक ले लूं, एक वक्फा ले लूं, जो आपका आर्गुमेंट जाए ना, मेरे शाह साहब के पास मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं वही ऑब्जेक्टिव बता, मैं उसी पे जवाब देता हूं। मकसद कोई है सब, जो हमारी मजबूरी होती है छोटी सी, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद भाई मकसद क्या है वाज़ेह हो जाए, अपोजिशन इसको किस मकसद के लिए समझ रही है क्या है, और हुकूमत का मकसद क्या है, सर को निकालने का। ब्रेक के बाद बात करेंगे। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से।
बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी अच्छे असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज बट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिटी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8। ब्रेक के बाद एक दफा फिर हाजिर हैं आपके साथ। शाह साहब एक बड़ी जुमला मुकम्मल कर लूं, शाह साहब चले। शाह साहब या तो को बताएं कि हम कोई गैर कानूनी काम करें, कोई गैर कानूनी काम करें। अगर हमारा किसी लीडर को ये हक नहीं है कि वो अपने घर वापस जाए और वो कहे कि मैं जीटी रोड से जाना चाहता हूँ, मैं भैया जाना चाहता हूँ, मैं मोटर से, और उसके लोग उसको, मैं अभी आप अपने सवाल के जवाब, उसको लोग अगर खुद मिलने आ रहे हैं तो सियासी जमातों को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। ये क्यों तबसरे करते हैं, ये क्यों खौफ के आलम में ये कहें कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो जा रहे हैं। आपका नुकता आ गया। सेनेटर साहब, आप रैली निकालें, आपका हक है, मैं आपके हक को तस्लीम करता हूं, ठीक।
मुझे रैली पे एतराज़ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं 2 चीज़ें ना करें, इस्तकबाल भी करें, एहतजाज भी करें, जो मर्जी करना चाहें। तो है ही नहीं, चलो जो अगर करना चाहें भी कर लें, क्योंकि पैम्फलेट से लगता है एहतजाज है, पर इस्तकबाल कह लें, चले किसी ने वैसे फेंक दिया, कोई भूला भटका था जो हवा से फेंक रहा था हेलीकॉप्टर के जरिए। चलिए छोड़िए, सवाल ये है कि जरूर करें, 2 चीजें ना करें। एक, सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें, पूरी पंजाब गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, लाहौर का मेयर और लाहौर के कॉरपोरेशन का अमला आपके बैनर्स लगा रहा है, आपकी पूरी जो सीएम को टेंशन में डाल दिया आपने। मैं तो कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और आपकी पूरे कमिश्नर्स के ऑफिस से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, अपने दफ्तरों से करो, PMLN के दफ्तरों से करो, रैली जरूर करो, जलसे करो, पर कमिश्नरों को, DCO बेचारों को ना इन्वॉल्व करो, उन्हें नौकरी करनी है। गुजरांवाला में हुआ है, लाहौर में हुआ है। अच्छा सुनिए, अच्छा दूसरी चीज पार्टी है, पार्टी में बात है, और दूसरी चीज ये बॉयज का फ्री फॉर ऑल बन गया। दूसरी चीज ना करो। नहीं, मैं आपकी बात, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहना पड़ेगा फिर। अभी देखिए 1 मिनट, नहीं तो मैं उठ के चली जाऊंगी जी। आप नहीं जाए ना, मर्द है यार, कमाल कर रही हो, अब मर्दों से भी मर्द है। आपसे फिर सवाल, और दूसरा मैं मानता हूँ, आई नो योर एबिलिटी। अब दूसरी बात ये है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना करो, ये आपने पहले किया था, पहले किया हाँ हमला। अभी तो नहीं, ये हमला नहीं है तो क्या है, ये पैम्फलेट हमला है, ये डायरेक्ट हमला है, एक आईनी इदारे पे हमला कर रहे हैं, ये आईनी इदारे पे हमला कर रहे हैं। पहले इन्होंने प्रैक्टिकली किया था लोगों के जरिए, अब ये तहरीर और तकरीर के जरिए कर रहे हैं। पहले हाथों से किया था, अब ये तहरीर और तकरीर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमला। कभी कहते हैं सारे खम तस्लीम है, कभी कहते हैं JIT पे मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर इस पर तनकीद करते हैं। मेक अप योर माइंड्स, अगर करना है तो फिर खुल के करो। कोई बात एक मेरा सवाल है सर, वो अपोजिशन के लिए खास, हम थोड़ा सा हुकूमत के ऊपर तनकीद से बाहर निकल के जरा अपोजिशन पे आते हैं। शरीफ साहब आपसे जरा सवाल है, एक पॉलिटिकल विक्ट्री आपको मिली, आप पे तनकीद इन्होंने ये की कि आप वो ट्रॉफी लेने आ गए जो मैच आपने खेला ही नहीं था, लेकिन बतौर अपोजिशन कलेक्टिवली आप कैपिटलाइज नहीं कर सके उस विक्ट्री को, उस जीत को आप ये तो कुछ निकाल नहीं सके। देखिए ये किसी की विक्ट्री नहीं है, ये समझ रहे होंगे कि विक्ट्री है। बात ये है कि इस वक्त मुल्क में बहरान, एक कैफियत, बहरानी कैफियत सामने आ रही है। आपके आज 4 दीर में अफसोस का इज़हार भी है। अफसोस के आगे हुकूमत को इस वक्त अपने स्टीयरिंग व्हील पे होना चाहिए। मैं ये मतलब ये रेटिंग्स के लिए मुझे सियासत नहीं समझ आती, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें। बात यह है कि आपको जब आप हुकूमत में होते हैं और आप ऐवानों में भी होते हैं, ऐवानों में भी आप पर जिम्मेदारी होती है कि आप बीच में कोई रास्ता निकालें, मुतदिल बात करें और रास्ते निकालें अवाम को हौसला देने के लिए, बजाय इसके कि आप रोज़ उनको इंतशार की तरफ ले जाएं। इस वक्त हुकूमत वक्त ले जा रही है इंतशार की तरफ, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। पहले इन्होंने किया इतने साल, और आप जो कह रहे हैं जो ट्रॉफी, देखिए बात ये है कि हमने वो शुरू 3 अप्रैल को ये पैनामा केस 2016 पे निकला, दुनिया में आया हुआ। 4 अप्रैल को हमने तकरीर में अपनी घड़ी खुदा बख्श में ये बात की। उसके बाद इस इलेक्शन कमीशन ले गए, हम पिटिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनके साथ बनाए, दे डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट, ये इनकी सवाबदीद है और वो केस इस वक्त ऐसा निकला। और हम इसलिए वहाँ आए कि देखिए जिम्मेदारी बनती है, अगर JIT में ऐसा कुछ निकला है और बातें यहाँ तक जा रही हैं कि आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई करें। आप मुझे बताएं, अगर मैं वहाँ नहीं होती और मेरे साथ कॉलीग्स 2 दिन नहीं होते तो आपने तो टॉक शो कर देना था रोज एक के बाद एक कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो लविंग अपोजिशन है, फ्रेंडली तो छोड़ दें, लविंग, ये आपका मैच शुरू हो जाता। इसलिए हम नहीं गए। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़े कौमी फैसले हैं और ये हमारे इस जमहूरियत के तसलसल में बहुत बड़े स्टेक्स हैं। कुर्बानियां हमने दी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो से लेके उससे पहले तक। इसके लिए नो, आई विल स्पीक नाउ, नो आई एम सॉरी, कुर्बानियां हमने, ये मर्द हजरात शोर मचाते रहते हैं, कुर्बानियां हमने दी हैं। तो हमने जब भी ये देखा कि मुल्क में हमें ऐसा क्या हमने आपको कुलीग समझा,
حقوق نہیں یہ ہماری کولیگ ہیں, ہم سارے ہیں, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, یہ اس طرح یہاں پارلیمنٹ میں کہتی ہے پارلیمنٹ میں استحصال کا الزام ہے آپ دونوں جماعتوں پہ نہیں ہونی چاہیے. اب ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہ کریں, اپنا جیسا سمجھیں, عدم توازن اپنا جیسا سمجھیں. میں یہاں پہ ماحول کو تھوڑا سا کھلا کرنے کے لیے ناظرین کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں صرف آپ کی اجازت سے, کہ جب میاں صاحب دار میں یا پھر جب ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ کیا کہتے تھے, جب مخالفت میں ہوتے ہیں پھر وہ کیا کہتے تھے. تھوڑا آپ کو 90s میں لے کے جاؤں گا میں, ذرا دیکھیے گا. کہ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفیٰ دے, یہ مطالبہ آپ کا بھی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری قوم کا ان کی صدارت کے منصب پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں, انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ. یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے. یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو, اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے, مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا, اعجاز الحق سرخرو ہو کے رہے گا انشاءاللہ. فکر مت کرو, ہم اللہ کے فضل سے آپ سے 4 قدم آگے چلیں گے, آپ ہمارے بس پیچھے چلو تو کام بن جائے گا. کسی طرح سے لوگوں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک اس فیصلے کے خلاف سخت ریئیکشن ہوا تھا جو غلام اسحاق خان نے ہمارے خلاف کیا تھا. لیکن یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کا, اس میں لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. اور پھر میں جب پریزیڈنٹ فاروق لغاری کو جا کے ملا تھا, میں نے ان کو کہا تھا پریزیڈنٹ صاحب یہ پبلک ڈیمانڈ ہے کہ یو ناؤ مسٹ گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ. تو یہ میری اکیلے کی ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ تھی. اور یہ دن بے نظیر بھٹو صاحب نے خود انوائٹ کیا تھا. اگر وہ ہماری باتیں سنتی, ہماری باتوں پہ توجہ دیتی تو یہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا. چلیں جی, یہ اب وہی صورتحال ہے کہ 93 میں یہی عدلیہ تھی جنہوں نے میاں صاحب کی گورنمنٹ بحال کی تھی, اور اب یہی عدلیہ جس پہ میاں صاحب کو, ان 5 ججز پہ میاں صاحب کو شکایت ہے. دیکھیں عادت ان کو جسٹس قیوم کی فون لائن کی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے. نا عجیب اس کی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے سائیکالوجی میں, سکیزوفرینیا کہتے ہیں اسے. صبح کچھ کہا جاتا ہے, شام کو کچھ اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں نا آئی فیل ویری بیڈ. لیکن وہ جو کلپ آپ نے دکھایا تھا, میں آپ کی اجازت سے کہوں کہ یہ اس کے بعد پھر بھی شہید محترمہ نے میثاق جمہوریت کا سب کچھ کیا, ان کو یہاں تک لے کے آئے, اس کا جنازہ انہوں نے نکالا ہے. اب ان کو شائستگی یاد آ رہی ہے گیلانی صاحب. آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہ صاحب اس پہ آپ ذرا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ 62-63 کے بارے میں بھی انہوں نے ریزسٹ کیا الیکشن کمیشن ریفارم کمیٹی میں 18ویں ترمیم اب ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے شہری صاحبہ کو اس چیز کی شکایت نہیں رہے گی کہ میں نے ان کو کم ٹائم دیا. کیونکہ بریک کے بعد جب آؤں گا تو ہمارے ساتھ جو حضرات موجود ہیں ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور میڈم آپ کے پاس بھی میں ضرور آؤں گا. ان کی کوشش کے باوجود ہم جمہوریت میں وقفہ نہیں آنے دیں گے. یہ ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. میں آج پروگرام میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں جمہوریت کو, اور یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے ہیں نا کہ سازش تھی. یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں. بہت بڑی بات ویسے کی. میں چاہوں گا اس پہ ذرا کھل کر ڈسکشن ہونی چاہیے. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کریں گے. کوئی ہے جو ان دہتی تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے.
रैली और मिसाइल का रेला। गिनती का रोला। दुकानें, अड्डे, पेट्रोल पंप बंद। इसके अलावा भी आपको दिखाएंगे रोरो का कंटेनर, जेठ से शिकवा, लाडले मियां साहब, चार वतन पर निसार। क्लब अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे पर कुदरती हुस्न के बीच। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाया। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की रैली रवां दवां है। इस रैली के मकासद पर जो है वो बड़ी जोर शोर
زور سے بحث بھی جاری ہے. بریک سے پہلے شاہ صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس ریلی کا مقصد کیا ہے, آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ بتا دیں پھر میں پوچھوں گا. اصل میں تو ان سے مجھے تو بڑا واضح مقصد دکھائی دے رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کے جو فیصلے کے بعد جس میں کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا اور صدارت بھی ان سے لے لی گئی, وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی, ان کا کارکن مایوس تھا, اس کے مورال کو اٹھانا تھا. ایک نمبر 2, ان کے بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز متزلزل ہو رہے تھے, تو یہ پیغام دینا تھا کہ نہیں سیاسی طور پر ابھی بھی ہم قائم ہیں, ہم زندہ ہیں, یہ دیکھو لوگوں کو, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, عوام کا فیصلہ, عوام کی کچہری فیصلہ کر دیا. یہ ری ایشورنس ریلی ہے فار دا پی ایم ایل این ووٹر. نو ہارم ان اٹ. نو ہارم. میں تو کہہ رہا ہوں ان کی سیاسی ضرورت تھی. یہ ریلی ان کی سیاسی ضرورت تھی اپنی ساکھ کو بحال کرنے, کیونکہ اتنی ان کی اپنا ووٹر سیٹ بیک نہیں, متنفر ہو چکا تھا, ہو چکا ہے. اب لوگ کہتے ہیں لوگ کٹھے ہو گئے. لوگ کیوں نہیں کٹھے ہوں گے؟ دیکھیے کسی کو یہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے, ان کی ایک اپنی ایک حلقہ اثر ان کا ہے, اور بہت سا ایک طبقہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب جب اس کو کال دیں گے تو وہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. انہیں ٹکٹیں بھی لینی ہے, انتخابات سر پہ منڈلا رہے ہیں, انہیں الیکشن بھی لڑنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے نمبر نہیں ٹانکیں گے کہ بھائی کل کو مجھے ٹکٹ بھی چاہیے, تو وہ سب اپنے لوگ اکٹھے کر کے لائیں گے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ اتنا پاپولر ہے. ان کا ایک سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا جو اظہار کرے گا, یکجہتی کا ہوگا, وہ باہر بھی نکلے گا, وہ نعرہ بھی لگائے گا, وہ بیج بھی لگائے گا. ہر جماعت کے ساتھ ایک طبقہ ہے جو اٹیچڈ ہوتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے, وہ فینس پہ بیٹھا ہوتا ہے, چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو نیوٹرل آبزرور ہے وہ ان سے مایوس ہو چکا ہے. اچھا, میرا ایک پرٹیننٹ کوشچن ہے سر آپ کے لیے, اس پہ آپ رسپونڈ بھی کیجیے گا. میرے صاحب نے کہا لولی لنگڑی جمہوریت قبول نہیں, جب صحافیوں سے ملاقات کے پچھلے دنوں قبول نہیں. سر یہ جمہوریت کو لولا لنگڑا کیا کس نے, اور کیا جمہوریت نام ہے میاں نواز شریف صاحب کا, وہ چلے جائیں گے تو جمہوریت چلی جائے گی؟ دیکھیں تو شاہ صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیا. کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا تھا اب یہ سازش کھل گئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس کے خلاف سازش کرنے جا رہے ہیں اور یہ کس کو میسج دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ اپنے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہ میں کہتا ہوں سیاسی اور پیغام بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر پارٹی کو کیا شاہ صاحب یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ورکروں کے پاس جائے, ضرور جائے. یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ورکروں سے ملے, وہ اپنے سپورٹروں کے پاس جائے. یہ اس میں تو کوئی دوسری اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں کوئی ایسا کام جو غیر آئینی ہو, کوئی غیر قانونی ہو, تو اس پر تو آبجیکشن کیا جا سکتا ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر قانونی. اچھا مجھے تو مہربانی کر کے آپ میں نے آپ کے بات چلے آپ مکمل کر لیں, بالکل تسلی کے بعد اس پہ آرگومنٹ کریں گے. جی شاہ صاحب نے ایک الزام ضرور یہ لگایا کہ پنجاب حکومت نواز میں, اور پنجاب حکومت کے دیکھیں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, یہ پوری حکومت لگا کے انہوں نے دیکھا ہے 15,000 سے 10,000 آدمی یہ ڈرنے کے وقت نہیں نکال سکتے, حکومتیں نہیں نکال سکتی آدمی. جب یہ سیاست کرتے ہیں, ان کا حلقہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ساری مشینری ان کے خلاف لگا لیں وہ ان کو الیکشن نہیں ہرا سکتی اگر ووٹر ان کے ساتھ ہے اور سپورٹر ان کے ساتھ ہیں. عوام جو ہے وہ کوئی نہ ڈی سی نکال سکتا ہے, نہ کوئی پٹواری نہیں نکال سکتا ہے. عوام جب نکلتی ہے تو اسے لوگ خود اپنے دل سے آتے ہیں. وہ یہ نکالنے والا معاملہ جو ہے یہ بڑا پرانا ہو گیا, وہ سڑکوں پہ کسی کو نہیں لا سکتے. چلیں بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا سر. ہاں دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ہم نے دل و جان سے مانا اس کا. فیصلے کے اوپر لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, فیصلے کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, فوری طور پر مانا ہے. آج حکومت اپنا کام کر رہی ہے, پرائم منسٹر اپنا کام کر رہا ہے, کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں. دیکھیں ہماری جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جلسہ کریں, جس جگہ میں چاہے ریلی کریں. حکومتیں جو ہیں وہ جلسے بھگتتی ہیں, مکاتی ہیں, وہ نکالتی نہیں ہیں. جلسے ہم نہیں کر رہے, بلاول صاحب نے جلسے نہیں کیے, ریلیاں نہیں کر رہے, میں ریلی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, بالکل نہیں along with this pamphlet. ایسے بہت پوسٹرز ہیں. ایک کشمیر کا میپ میں آپ کو دکھا دوں اپنے فون پہ سے نکال کے, ایک میپ ہے ون آف دا پوسٹر جس میں کشمیر حصہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. ٹھہر جائے نا آپ, میں آپ کے پیچھے تو نہیں پڑ گئی ہوں, مگر کلیریکل مسٹیک یا سیاست ہے, یہ آپ ملک کی
वफाकी और पंजाब की लीडरशिप है। मरहब भी तो कहते हैं कश्मीर कमेटी में लेके जाए आप। अरे मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके आऊंगी, ये क्या बात है? आबिशर अली साहब मैं आपका साथ दूंगा वहाँ। वो तो बस आपने पढ़ा उनका, ये देखिए, मैं आपका साथ दूंगा। ये क्या है? देखें ये किसी पोस्ट इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, ये आपकी हुक्मरान जमात कर रही है जब खित्ते में घिरा हुआ है, घिरा हुआ है मसले मसाइल से। ये दिखाएं लोगों को। इसमें कैमरा लाओ, क्या कैमरा लाओ। ये बड़ी काबिल इतराज़ बात है। ये किसने बनाया है? हमारा नहीं है, ये आपके पोस्टर्स में लगा हुआ है। पोस्टर में यहाँ पोस्टर मुलाहिजा फरमाइए भाई, मुलाहिजा फरमाइए। दिन रात इसमें जो मेन क़यादत है उसने तो नहीं काम किया। हमने कहा कोई काम होगा यहाँ नहीं जी, लगाने की जरूरत है यहाँ नहीं, यहाँ वैसे बन जाता है। चलिए हम ऐसी तस्वीर यहाँ दिखा सकते हैं, शोर ना करें, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये आप शोर ना करें। बात ये असल इशू ये है कि आप इस वक्त नॉर्मल आप जश्न तो नहीं मना रहे ना आप कोई एक नॉर्मल पॉलिटिकल रैली निकाल रहे हैं। आप इस वक्त कह रहे हैं मुल्क को, आप बार बार कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है फैसला, फिर आप कहते हैं आप बात करने दें, मुझे बात करने दें आप मुझे प्लीज। नहीं, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। पॉइंट क्लियर कर दें फिर आप। नहीं, मैं बात आपसे कह रही हूँ, थ्रू आउट ही इज बीन हेकलिंग। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। स्मूथ ऑन इट। नहीं, हम आप सब मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं, हम बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से इस पे आर्गुमेंट करेंगे। मैंने आपकी कोई बात इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, आप ये गैर मतलब सीरियस शो नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी, वो पूरा बात कर लिया। चलिए सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ You're running a non-serious show, young man. This is obviously non-serious. No, I'm telling you something very important. जब हुकूमत इस वक्त इतने टेंशन में मुल्क को ले जाती है, उससे पूछना पड़ता है कि आप चाह क्या रहे हैं, या आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं, या आप अपनी सियासी मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, या आप पाकिस्तान के झंडे का सोच रहे हैं, जिसमें से आपने निकाल दिया है कश्मीर। चलिए वो आपके कारकुन ने निकाला, बट व्हाट आर यू थिंकिंग? आप इस वक्त किस सोच में हो? आपकी इस वक्त क्या पाकिस्तान के लिए विचार है? आपने क्या सोचा है? आपकी काबीना इस वक्त क्या कर रही है? जब हजार चीजें सामने आती हैं, आपकी डेफिसिट नीचे जा चुकी है, कोई शो इस पे हो रहा है कि दीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, कि IMF ने भी पीछे सर हाथ इस तरह रख दिया है कि कह रहे हैं कि आपकी दुनिया में तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपके रिजर्व किधर चले गए, आपकी तिजारती खसारा इतने नीचे चला गया है कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, आपके टेक्सटाइल कम्युनिटी सब जा चुकी है मुल्क से। ये तो प्रो बिजनेस गवर्नमेंट थी, तो ये क्या कर रहे हैं? किसकी बात सुन रहे हैं? किस पर तवज्जो दे रहे हैं? ब्रेक के बाद इस आपने बड़े अहम लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग में अचानक से इजाफा हो गया, जिसको खत्म होना था। कहां चली गई है? काफी ज्यादा हो गई है लोड शेडिंग में, इजाफा कहां हुआ है? एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
सुनते रहे जुनूं की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। रैली रवा दवा है लेकिन उसके साथ साथ जो इससे मिलते जुलते सवालात हैं वो भी जारी रहेंगे। शाह साहब, लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो गया, शहरी साहिबा ने बड़े अहम इशूज़ की तरफ इशारा किया जो कि इस टाइम में जब कौम की नज़रें पैनामा की प्रोसीडिंग्स पर चल रही थी, पैनामा के बाद जो फैसला आया उसके बयानात पर चल रही थी, उसके पस पर्दा ये सब कुछ हो रहा था कि ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें नुकसान, उसके साथ आपका सर्कुलर डेट वो बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया, खौफनाक हद तक पहुँच गया, फॉरेन रिजर्व्स में कमी। लोड शेडिंग का जिन अचानक काबू से बाहर हो गया, ये अभी बात जब अभी सेंटर साहब कह रहे थे कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया, सर ये फिर कसूर अपोजिशन का है कि उनको काम नहीं करने दिया। तेल की कीमतें देखें कितनी नीचे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। अर्ज ये है कि डार साहब तो ये इकॉनमी की बड़ी रोजी पिक्चर पेंट करते हैं कि जनाब मेरे आने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और यहाँ हमारी बेहतरी आई हैं, लेकिन मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा मकरूज हो चुका है।
गुर्बत में इजाफा हो चुका है, ठीक है, सरमायाकारी नहीं हो रही। सबसे बड़ी सनत इस मुल्क की टेक्सटाइल की सनत है, वो बहरानी कैफियत में है। सबसे बड़ा तबका इस मुल्क में किसान तबका है, वो ज़बू हाली की कैफियत में है, फाका कशी की कैफियत में है, और ये कह रहे हैं मईशत बेहतर हो गई है। लेकिन देखिए, हम अगर कहते हैं ना तो आप कहेंगे तनकीद कर रहे हैं, अपोजिशन तनकीद करती है, लेकिन हमें ना सुनिए, आज तहमीना दुरानी साहिबा जी ने जो ट्वीट किया है, कम से कम उसको तो पढ़ लो, उसको तो देख लो, वो क्या कह रही है, वो तो आपकी अपनी है ना, और बड़ी समझदार खातून है। वो ट्वीट हम दिखा भी देते हैं और कि मतलब शरीफ खानदान में बहुत दरारें पड़ चुकी हैं जिस तरह पार्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि जो रैली निकली है वो तो फिर इट्स अ सीरियस क्राइसिस इन द नून लीग। अगर 7,000 लोग निकले हैं जिसमें से 1,000 तो अहलकार हैं हुकूमती। वैसे तो टोटल 9,000 पुलिस जो है ना वो तैनात इसके लिए पूरे रूट 9,000। चलिए तो फिर पुलिस का ही काफिला हो गया। हुकूमती रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अपने से कोट नहीं कर रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल सर, आपने जिनकी तरफ इशारा किया सेनेटर साहब, सर क्या वजह है? मैडम ने बड़े अच्छे सवालात किए थे, उनका जवाब कम से कम हुकूमती सतह पर आना चाहिए। क्यों और संजीदा मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों ये सब कुछ नीचे जा रहा है, कि आपका किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ सर? आपके वज़ीर आज़म अभी भी बैठे हुए हैं ऐवान में। तो शेर रहमान साहबा दरमियान में इस बात पे शायद ज़रा डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं सिर्फ उनसे जब ये बात कर रही थी तो मैं बीच में बात नहीं करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि वो तो खत्म हो गया। नहीं, उस बात में ज़रूर है कि देखिए, फेसबुक पे या कोई चीज़, कोई आजकल जो है मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई आदमी भी कोई चीज़ रख सकता है, आ जाती है, कोई वर्कर रख सकता है, कोई वैसे रख सकता है, कई ऐसी चीज़ें जो हम दूसरे जमातों की रोज देख रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस तरह वो तस्वीर एक नक्शे के बारे में ना, ठीक है ना, ये नहीं, मैं ये किसी जमात से मंसूब कर देना कि ये इसकी जमात की पॉलिसी ये बताना, ये चीजें, ये मईशत में क्या हो रहा है तो बताएं, इसका बताएं ना जरा, जो मेरे फोन से निकला है। नहीं, वो मैंने भी देखा नहीं है, तो पढ़ा नहीं है, मैं जब देखूं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी।